السلام علیکم۔ شاہد آفریدی نے پورے بھارت میں آگ لگا دی۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی منظرنامے پر ایسا اٹھایا کہ ہندوستان سے لے کر آسٹریلیا تک عام لوگ بھی کشمیر سے متعلق شاہد آفریدی کے حالیہ ٹویٹس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ بھارت کے نامور کرکٹرز جنہوں نے ماضی میں شاہد آفریدی کے ساتھ کام کیا یا کسی طور پر وہ آفریدی کے دوست سمجھے جاتے تھے، ان سب پر بھارتی میڈیا نے اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے پاکستانی کرکٹر شاہد آفریدی سے دوستیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، پچھلے کئی گھنٹوں سے پاکستانی سابق کرکٹر اور دنیا میں بوم بوم کے نام سے پہچانے جانے والے شاہد آفریدی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بھارت میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں ہیں۔ پورا بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین لالا آفریدی کے خلاف محاذ سنبھالے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی تنقید جاری ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر، شیکھر دھون سے لے کر آفریدی کے بھارتی دوست کرکٹر جن میں یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ نمایاں ہیں، وہ بھی شاہد آفریدی پر تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں۔ آخر شاہد آفریدی نے بھارت کی ایسی کون سی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے جو انہیں اتنی تکلیف کا سامنا ہے اور چیخو پکار جاری ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ شاہد آفریدی اپنی خیراتی فاؤنڈیشن کے تحت پورے ملک میں ضرورت مند لوگوں میں کھانے کا راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ چند روز پہلے ایک وائرل ویڈیو میں انہیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اپنے سر پر راشن اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب وہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آزاد کشمیر پہنچے۔ لالا آفریدی کا آزاد کشمیر پہنچنا ایک تاریخی لمحہ بن گیا، کیونکہ ان کے اس دورے نے مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کو ایک نیا رخ دیا ہے، اور پورے بھارت میں جو چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی آواز پاکستان سمیت پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ شاہد آفریدی کی چند روز پہلے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے دوران بنائی گئی ایک ویڈیو انڈیا میں وائرل ہو گئی ہے، جہاں انہیں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شاہد آفریدی کا پاکستان میں ٹرینڈ کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، مگر گزشتہ چند روز میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی پاکستانی لیگ اسپنر کی باز گشت سنی جا سکتی ہے۔ دوستو، چند روز پہلے بنگلہ دیش کے مایہ ناز بلے باز اور وکٹ کیپر مشفق الرحیم نے کووڈ-19 ریلیف فنڈ کی کوششوں کے سلسلے میں اس بلے کو نیلامی کے لیے پیش کیا تھا، جس سے انہوں نے 2013 میں سری لنکا کے خلاف بنگلہ دیش کے لیے پہلی ڈبل سینچری بنائی تھی۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے مشفق الرحیم کے اس بلے کو $20,000 میں حاصل کر لیا، جس کے بعد سے بنگلہ دیش میں کرکٹ کے مداحوں نے انہیں انسانیت کی اس خدمت پر خوب سراہا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہے کیا۔ انڈیا میں ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے کی وجہ شاہد آفریدی کا خیراتی کام نہیں، بلکہ کشمیر سے متعلق ایک حالیہ بیان ہے جس سے پورے بھارت میں آگ لگ چکی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں شاہد آفریدی کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ گزشتہ برسوں کی طرح شاہد آفریدی نے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ چھوٹے سے کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد فوج جمع کر دی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی موجودگی میں اپنے خطاب میں شاہد آفریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مارا، چائے پلا کر واپس بھجوایا ہے عزت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سابق کپتان نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پاکستان سپر لیگ کے اگلے سیزن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نام سے ٹیم شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے اگر پی سی بی کشمیری ٹیم کو PSL کا حصہ بناتا ہے تو وہ خود اس کی قیادت کریں گے۔ پاک فوج کی خوبصورت شرٹ زیب تن کی ہوئے شاہد آفریدی نے آزاد کشمیر میں اپنا ذاتی گھر بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مقامی لوگ انہیں رہنے کے لیے جگہ دیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں اپنا ذاتی گھر بنائیں۔ ماضی میں بھی شاہد آفریدی کے ان لفظی حملوں کا جواب انڈیا کے سابق اوپننگ بلے باز گوتم گمبھیر ہی دیتے آئے ہیں، اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس ویڈیو کے جواب میں ایک ٹویٹ شیئر کی۔ شاہد آفریدی کی صحیح عمر کے حوالے سے ایک تنازع ضرور رہا ہے، اور اسی کو نشانہ بناتے ہوئے گوتم گمبھیر نے انہیں ایک 16 سالہ شخص قرار دے ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی قمر جاوید باجوہ اور عمران خان جتنا چاہے زہر اگل لیں مگر روز آخرت تک کشمیر نہیں ملے گا۔ انہوں نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش یاد ہے،
शाहिद आफरीदी के चूजों वाले बयान को सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान से जोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इंडियन सारिफीन अभिनंदन को न सिर्फ अपने हीरो के तौर पर पेश करते नजर आए, बल्कि पाकिस्तानियों पर तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी इल्जाम लगाया। दोस्तों याद रहे कि 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके हवाड़ा में पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में अमन और जज्बा खैर सगाली के तहत भारत वापस लौटा दिया गया था। शाहिद आफरीदी के साथ साथ भारतीयों ने अपने 2 कैरेक्टर्स युवराज सिंह और हरभजन सिंह को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि कोरोना की वबा के खिलाफ जंग में शाहिद आफरीदी की फलाही फाउंडेशन को कुछ अर्सा पहले इंडिया के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई गई थी। इंडिया में सारिफीन को हरभजन और युवराज के ताउन की ये पेशकश रास नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हरभजन और युवराज पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। शाहिद आफरीदी ने हरभजन और युवराज की तरफ से मदद के ऐलान पर उनका शुक्रिया अदा किया था और दोनों खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाने वालों के रवैये पर अफसोस का इजहार भी किया था। इस मरतबा वीडियो वायरल होने के बाद सारिफीन एक बार फिर लोगों को ये याद दिलाते नजर आए कि ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी मदद इंडिया के 2 साबिक क्रिकेटर्स ने की। युवराज सिंह और हरभजन सिंह अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी के साथ हर किस्म के ताल्लुक और दोस्ती को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इंडिया टुडे के शो स्पोर्ट्स तक में गुफ्तगू करते हुए इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि अब उनका पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शाहिद आफरीदी के कश्मीर से मुताल्लिक हालिया तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि शाहिद आफरीदी ने जो कुछ कहा वो बहुत परेशान कुन है। उन्होंने हमारे मुल्क और वजीर आजम के बारे में गलत बातें की, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हरभजन सिंह और इनके साथी साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों से खैराती इदारे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में अतियात जमा कराने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम का भी ये कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग किसी बॉर्डर, मजहब और फिरके से बालातर है, इसलिए हमारा मकसद भी इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करना ही था। लेकिन ये शख्स हमारे मुल्क के बारे में बुरा बोल रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शाहिद आफरीदी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें हमारे मुल्क के बारे में गलत बातें करने का कोई हक नहीं है। उन्हें अपने मुल्क और अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। मैंने 20 साल से ज्यादा अरसे तक क्रिकेट खेली है और इंडिया के लिए कई मुकाबले जीते। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कुछ किया है। लाला अफरीदी के कश्मीर पर बयानात कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और इंडिया के साबिक ओपनर गौतम गंभीर सियासी और समाजी मसाइल पर खुलकर तबसरा करते दिखाई देते हैं, जिसके बायस ये आपसी नोक झोंक सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं महदूद रहती। गौतम गंभीर ने गुज़श्ता साल मार्च में कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। इंडिया के लोकसभा यानी पार्लियामान के गुज़श्ता साल होने वाले इंतखाबात में वो मशरकी दिल्ली के नशिस्त पर फतेहयाब भी हुए थे। याद रहे कि रस्मी तौर पर सियासत में आने से पहले 2018 में भी इन दोनों क्रिकेटर में कश्मीर के मामले पर तलख कलामी हुई। शाहिद आफरीदी ने अप्रैल 2018 में एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के सूरत हाल को हौलनाक और परेशान कुन करार दिया था। उसके जवाब में गौतम ने लिखा था कि आफरीदी अल्फाज के चुनाव में ज़हनी तौर पर पसमानदा है। और ये दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि गौतम गंभीर के हवाले से ये पहले भी बात कही जाती रही है कि जब पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से कोई भी बात होती है, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी हिमायत करता है तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी यकीनन इंतहाई परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और उनके ऐसे बयानात से ये साफ आया होता है, साफ पता चलता है कि वो अपनी दोस्ती को बुलाकर अपने मुल्क की खातिर हिंदुइज्म के खिलाफ कोई भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हालांकि कई इंटरव्यूज में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायानाज खिलाड़ी बूम बूम शाहिद आफरीदी ने इस बात का इकरार किया था कि उनके भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों से अच्छे ताल्लुकात हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए हरभजन और युवराज सिंह की। दोस्तों, इस सारे तनाजुर में देखना होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हिम्मत कहां तक काम करती है और वो भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना मैच खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और खास तौर पर अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो कश्मीर के नाम में उनका नाम भी सरे फहरिस्त रहता है। अब दोस्तों देखना होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भारतीय खिलाड़ियों के साथ कैसी दोस्ती रहती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। शाहिद अफरीदी ने पूरे भारत में आग लगा दी। मसला कश्मीर को आलमी मंजरनामे पर ऐसा उठाया कि हिंदुस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आम लोग भी कश्मीर से मुताल्लिक शाहिद अफरीदी के हालिया ट्वीट्स पर अपना अपना रद्द अमल दे रहे हैं। भारत के नामवर क्रिकेटर्स जिन्होंने माजी में शाहिद अफरीदी के साथ काम किया या किसी तौर पर वो आफरीदी के दोस्त समझे जाते थे, उन सब पर भारतीय मीडिया ने इतना दबाव डाला कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी से दोस्तियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पिछले कई घंटों से पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर और दुनिया में बूम बूम के नाम से पहचाने जाने वाले शाहिद आफरीदी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे भारत में सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में हैं। पूरा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया सारिफीन लाला आफरीदी के खिलाफ महाज संभाले हुए हैं और तरह तरह की तनकीद जारी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर, शेखर धवन से लेकर आफरीदी के भारतीय दोस्त क्रिकेटर जिनमें युवराज सिंह और हरभजन सिंह नुमाया हैं, वो भी शाहिद आफरीदी पर तनकीद के नश्तर चला रहे हैं। आखिर शाहिद आफरीदी ने भारत की ऐसी कौन सी दुम पर पांव रख दिया है जो उन्हें इतनी तकलीफ का सामना है और चीखो पुकार जारी है। हुआ कुछ यूं कि शाहिद अफरीदी अपनी खैराती फाउंडेशन के तहत पूरे मुल्क में जरूरतमंद लोगों में खाने का राशन तकसीम कर रहे हैं। चंद रोज पहले एक वायरल वीडियो में उन्हें बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपने सर पर राशन उठाकर लोगों में तकसीम करते हुए दिखाया गया है। तो अब वो इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आजाद कश्मीर पहुंचे। लाला आफरीदी का आजाद कश्मीर पहुंचना एक तारीखी लम्हा बन गया क्योंकि इनके इस दौरे ने मसला कश्मीर और कश्मीरियों को एक नया रुख दिया है और पूरे भारत में जो चीखें निकल रही हैं, इनकी आवाज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पहुंच रही है। शाहिद अफरीदी की चंद रोज पहले पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के दौरे के दौरान बनाई गई एक वीडियो इंडिया में वायरल हो गई है, जहां उन्हें इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते देखा जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान में ट्रेंड करना कोई अचंभे की बात नहीं, मगर गुज़श्ता चंद रोज में इंडिया और बांग्लादेश के सोशल मीडिया पेजेस पर भी पाकिस्तानी लेग स्पिनर की बाज़गश्त सुनी जा सकती है। दोस्तों, चंद रोज पहले बांग्लादेश के मायानाज बल्लेबाज और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने कोविड-19 रिलीफ फंड की कोशिशों के सिलसिले में उस बल्ले को नीलामी के लिए पेश किया था, जिससे उन्होंने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के लिए पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने मुशफिकुर रहीम के इस बल्ले को $20,000 में हासिल कर लिया, जिसके बाद से बांग्लादेश में क्रिकेट के मद्दाहों ने उन्हें इंसानियत की इस खिदमत पर खूब सराहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि वायरल होने वाली वीडियो में है क्या। इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह शाहिद अफरीदी का खैराती काम नहीं, बल्कि कश्मीर से मुताल्लिक एक हालिया बयान है जिससे पूरे भारत में आग लग चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो में शाहिद अफरीदी को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी है। गुज़श्ता बरसों की तरह शाहिद अफरीदी ने एक मर्तबा फिर इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में होने वाले मुजालिम का भी जिक्र किया और कहा कि छोटे से कश्मीर में 7 लाख से ज्यादा फौज जमा कर दी है। पाक फौज के जवानों की मौजूदगी में अपने खिताब में शाहिद अफरीदी का ये भी कहना था कि हमने तो उनके चूजों को हवा में मारा, चाय पिलाकर वापस भिजवाया है इज्जत के साथ। इसके अलावा साबिक कप्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान सुपर लीग के अगले